Hello students, I am Dr. Archana Singh, Associate Professor in Botany, MSJ Government PG College, भरतपुर। आज हम डिस्कस करेंगे फ्लैग स्मट ऑफ वीट। ये टॉपिक प्लांट पैथोलॉजी स्पेशल पेपर सेकेंड का है और इसको हम देखेंगे। मेन होस्ट है इसका ट्रिटिकम यानी वीट। वीट में दो स्पीशीज हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम यानी वीट नॉर्मल जो हम खाने के काम में लेते हैं, और दूसरा है ट्रिटिकम टर्जिडम यानी ड्यूरम वीट। ये इसका मेन होस्ट है। डायग्नोसिस: लीव्स विल अपीयर स्ट्रीक विद स्ट्राइप्स विच आर वाइट, ग्रे और ब्लैक। लीफ के ऊपर स्ट्राइप्स होती हैं जो सफ़ेद, ग्रे कलर की और ब्लैक कलर की होती हैं। द लीफ डिस्कलरेशन इज ड्यू टू फंगल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सोराई विच आर क्लस्टर्स ऑफ स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर्स। फंगल स्ट्रक्चर्स होते हैं। डिस्कलरेशन जहाँ पर होता है वहाँ पर फंगल ग्रोथ होती है। उन ग्रोथ में क्या होते हैं, स्पोर्स भरे हुए रहते हैं जिनको हम सोराई कहते हैं। ड्यूरिंग स्पोरुलेशन सोराई बस्ट थ्रू लीव्स रिलीजिंग टीलियोस्पोर्स एंड कॉज लीव्स टू अपीयर टैटर्ड। टीलियोस्पोर्स जो है वो इन सोराई के बस्ट होने पर रिलीज हो जाते हैं। These spores are reddish brown, smoothly rounded, and they tend to be in clumps of 5 to 6 with sterile cells around them. The clumped spores are often referred to as spore balls and measure about 20 to 50 microns. Large quantities of U. agropyri यानी U. urosistis। यूरोसिस्टिस एग्रोपायरी क्या है, पैथोजन है इसका। तो यूरोसिस्टिस एग्रोपायरी स्पोर्स लुक लाइक ब्राउन और ब्लैक डस्ट। ब्राउन और ब्लैक धूल की तरह, ये डस्ट की तरह दिखाई देते हैं। लिस्ट ऑफ सिम्टम्स: क्या क्या सिम्टम्स हैं? इन्फ्लोरिसेंस, डिसकलरेशन, पेनिकल, लीव्स एबनॉर्मल फॉर्म्स, लीव्स फंगल ग्रोथ, लीव्स रोल्ड और फोल्डेड, seeds empty grains, seeds shriveled, stems stunting और rosetting। स्टंटिंग और रोजेटिंग का मतलब होता है छोटा रह जाना, एकदम कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो बन जाता है स्टेम्स का, उसको हम स्टंटिंग यानी ग्रोथ जो है चेक हो जाती है। स्टेम्स विच इज ब्रूम, वेजिटेटिव ऑर्गन्स, सरफेस लेसन्स और डिस्कलरेशन। सिम्टम्स: infected leaves and leaf sheaths exhibit white or yellow streaks that turn gray and then black. Sorae then appear in vegetative parts, most commonly in the leaves as narrow elongated blisters between the leaf veins, some extending almost the entire length of the leaf lamina। ये इसका रेफरेंस है मॉर्ड्यू एंड वॉलर 1981। The leaves may droop and be thin and stunted before sporulation occurs. Black streaks may also occur on the stem, which is stunted and dwarfed at the internodes. Infected weeds plants are thus stunted and spindly, often bearing more tillers than healthy plants, which gives them a grass-like appearance. In cereals, especially in resistant varieties, only some tillers may show symptoms. Symptoms on tough grasses are described by Smiley et al. 2005 as stunting, yellowing in cool weather, and stiffening of leaves with streaks turning from yellow given to dark gray. After the sorae mature and release spores, the leaves turn brown, dry up and die. इसके बाद में ये समाप्त हो जाती हैं। प्रिवेंशन क्या है यूरोसिस्टिस एग्रोपाई का? यूरोसिस्टिस एग्रोपायरी इज सॉइल बॉर्न एंड एक्सटर्नली सीड बॉर्न। सॉइल बॉर्न है ये और एक्सटर्नली बाहर से सीड बॉर्न भी है। लाइन 1998 argues that quarantines were and are not necessary for the control of flag smut of wheat.
Triticum aestivum, because seed treatment, the use of resistant cultivars and appropriate cultural methods can control the disease. Environmental conditions. This pathogen prefers arid summers, moderate temperatures and mild winters. Flag smut fungi germinate in dry soils when the temperature ranges from 40 to 80 degree Fahrenheit. Flag smut has been reported in Australia, the United States, Canada, South Africa, China, Japan, India, Egypt and Pakistan. Cultivation practices that leave plant debris on soil surfaces enhances Urosystis agropyres success, as does sowing wheat in winter rather than spring. Mild winters improves the pathogen's ability to establish infections for seeds sown in autumn or winter. Spring plantings give the fungus less opportunity to establish. These are the environmental conditions. Now we come to the eradication. कैसे हम एरेडिकेशन कर सकते हैं? सफिशिएंटली लॉन्ग साइकिल्स ऑफ क्रॉप रोटेशन में रिजल्ट इन एरेडिकेशन ऑफ इनोकुलम इन द सॉइल. सबसे ज़्यादा जो अच्छा तरीका होता है वो क्रॉप रोटेशन का होता है. तो उससे सारे स्पोर्स जो हैं मिट्टी के अंदर धीमे धीमे अपने टाइम पीरियड के बाद में समाप्त हो जाते हैं. बट द स्मट स्पोर बॉल्स आर नोन टू परसिस्ट फॉर सेवरल ईयर्स. काफ़ी सालों तक ये स्पोर्स जो है वो जीवित रहते हैं. तो यदि हम लगातार क्रॉप रोटेशन करते रहें तो धीमे धीमे इनका लाइफ स्पैन जो है कम होता चला जाता है. जितनी वायबिलिटी इनकी फर्स्ट ईयर में होती है उतनी सेकंड में नहीं होती है, जितनी सेकंड में होती है उतनी थर्ड में नहीं होती है. तो धीमे धीमे इनकी वायबिलिटी जो है वो कम होती जाती है और ये समाप्त हो जाते हैं. Repeated planting of resistant varieties may have the same local effect. Purdy in 1965 attributes the decline or disappearance of flag smut on wheat from parts of the USA to the use of the resistant varieties. यदि हम resistant varieties का इस्तेमाल करते हैं तो यह बीमारी जो है वो अपने आप ही धीमे धीमे समाप्त हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर फिर फंगल ग्रोथ नहीं हो पाती है. Disease cycle. Urosystis agropyre produces teliospores which may be wind dispersal or distributed through soils via machinery or animals. किस तरीके से ही टीलियोस्पोर्स जो हैं वो डिस्पर्स होते हैं, या तो हवा के द्वारा या फिर सॉइल्स में पड़े रहते हैं. मशीनरी का यूज करने से या एनिमल्स के पैरों के द्वारा ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं. In soil, a dikaryotic teliospore germinates, meiosis occurs, then mitosis, and this gives rise to 4 basidiospores, each containing a single nucleus. सॉइल में डाइकैरियोटिक टीलियोस्पोर्स क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं. मियोसिस होता है पहले और मियोसिस के बाद में माइटोसिस होता है. माइटोसिस से 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं और प्रत्येक में एक एक न्यूक्लियस होता है. Basidiospores germinate on seedlings and each hypha undergoes plasmogamy with a compatible hypha. In this, one nucleus transfers to the other hypha, re-establishing the dikaryotic state of the fungus. The hyphae form aprisoria which penetrate the coleoptile of an emerging seeds, shoots through the epidermal tissue, then hyphae grow between vascular bundles of the leaves. तो क्या होता है? बेसिडियोस्पोर्स जब जर्मिनेट करते हैं सीडलिंग्स के अंदर तो यह इनके अंदर हाइफा बनता है. हाइफा में प्लाज्मोगैमी होती है और प्लाज्मोगैमी होने के बाद में न्यूक्लियस जो है हाइफा के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. और ये क्या करते हैं? यदि न्यूक्लियस कैसे हैं, एक डिफरेंट स्ट्रेन के न्यूक्लियस है, एक माइनस का है और एक प्लस का है, यानी एक फीमेल की तरह काम करेगा और दूसरा मेल की तरह काम करेगा. दोनों न्यूक्लियस जो हैं आपस में एक साथ आ जाते हैं, मेल और फीमेल न्यूक्लियस, जिसको हम क्या कहते हैं? डाइकैरियोटिक स्टेट कहते हैं. और इस प्रोसेस को कहते हैं डाइकैरियोटाइजेशन. ठीक है, डाइकैरियोटाइजेशन ऑफ द फंगस. अब ये डाइकैरियोटिक स्टेट में जब बेसिडियोस्पोर्स आ जाते हैं, हाइफा आ जाता है, तो हाइफा फॉर्म द एप्रिसोरिया. तो जब स्टोमेटा से हाइफी अंदर एंटर करता है टिश्यूज के अंदर, तो सबसे पहले क्या बनाता है? एप्रिसोरिया बनाता है. एप्रिसोरिया एक गोल बेसिकल टाइप स्ट्रक्चर होता है. इसमें मेल और फीमेल दोनों न्यूक्लियस जो है वो एप्रिसोरिया के अंदर
आ जाते हैं और ये पेनिट्रेट, फिर इससे कई सारे क्या निकलते हैं, हाइफल थ्रेड्स निकलते हैं। ये हाइफल थ्रेड्स जो हैं वो इंटर सेल्यूलर या इंट्रा सेल्यूलर तरीके से लीव्स के अंदर, लीव्स के सेल्स के अंदर जो हैं वो फैल जाते हैं। Some hyphal cells give rise to smut sori bearing teliospores which emerge through the leaf tissue for wind dispersal. Teliospores come to rest in soils and when conditions are right, they give rise to more basidiospores further spreading the infection. तो teliospores जो हैं वो जमीन में पड़े रहते हैं सॉइल के अंदर और जब कंडीशंस जो हैं फेवरेबल होती हैं तो ये बेसिडियोस्पोर्स को जन्म देते हैं और बेसिडियोस्पोर्स जो हैं वो फर्दर इन्फेक्शन को जन्म देता है। यह डिजीज साइकिल है यूरोसिस्टिस एग्रोपायरी की। यहाँ पर आप डायग्राम से इन सभी स्टेजेस को देख सकते हैं। अब आते हैं हम कंट्रोल, किस तरीके से यूरोसिस्टिस एग्रोपायरी का नियंत्रण किया जा सकता है। कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड सैनिटरी मेथड्स दैट टेंड टू रिड्यूस इनोकुलम सच एज रोटेशन विद नॉन होस्ट आर क्वाइट यूजफुल। Wees in 1987 indicate spore balls are capable of surviving in soil for at least 3 years, so shorter rotations as fallow periods may only reduce the soil-borne inoculum to some extent. तो कल्चरल प्रैक्टिसेस किस तरीके से करनी चाहिए, सैनिटरी मेथड्स हमको यूज करने चाहिए और रोटेशन, क्रॉप रोटेशन जो है वो करना चाहिए जिससे इनोकुलम जो है वो धीमे धीमे कुछ पीरियड्स के अंदर समाप्त हो जाता है। मैनिपुलेशन ऑफ प्लांटिंग टाइम एंड डेप्थ टू conserve soil moisture and avoid soil temperature that are favorable for spore germination and subsequent infection can also be effective in disease control in specific area. तो प्लांटिंग टाइम में थोड़ा सा हम मैनिपुलेशन कर दें, चेंज कर दें, डेप्थ का चेंज कर दें तो इनसे क्या होता है, सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व, सॉइल मॉइस्चर कंजर्व नहीं हो पाता और सॉइल टेम्परेचर भी अवॉइड हो जाता है जिससे फेवरेबल स्पोर जर्मिनेशन के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो उसको नहीं मिल पाती हैं और इन्फेक्शन जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। कुमार एंड सिंह in 2004 found that higher levels of nitrogen and phosphorus fertilizer as well as the addition of poultry manure to the soil reduced the level of disease in wheat. कुमार एंड सिंह ने अपनी रिसर्च में 2004 में पाया कि यदि हम नाइट्रोजन और फास्फोरस का अच्छा लेवल रखें फर्टिलाइजर का और पोल्ट्री मैन्योर ऐड करें सॉइल के अंदर तो ये डिजीज जो है वो रिड्यूस हो जाती है गेहूं के अंदर। होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस अमंग ऑल द सीरियल स्मर्ट्स यूरोसिस्टस एग्रोपायरी हैज शोन द लीस्ट टेंडेंसी टूवर्ड्स पैथोजेनिक स्पेशलाइजेशन। Some peculiar feature in the life cycle of these fungals of fewer sporidia compared to related smut fungi, the absence of secondary sporidia and sporidial fusion in situ are probably responsible for limiting its variability. As a consequence, resistance to flag smut has remained effective in Australia and elsewhere, and new races have not been detected. And Line attribute disappearance of flag smut as a problem on wheat in parts of USA primarily to the use of resistant varieties. Now we come to the chemical control. Chemical control में हम क्या कर सकते हैं, effective control of flag smut of wheat originating from both seed-borne and soil-borne inoculum was achieved through seed treatment with क्विंटोजीन। यासु एंड योशिनोवो 1963 ने एक्सपेरिमेंट किया था क्विंटोजीन का जिससे पाया कि सीड बॉर्न और सॉइल बॉर्न इनोकुलम जो है वो समाप्त हो जाता है। विद द एडवेंट ऑफ systemic fungicides, effective disease control without a marked reduction in seedling survival was obtained with vanomyl carboxyn and oxycarboxyn seed ट्रीटमेंट। इनके द्वारा जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। ड्राई सीड ड्रेसिंग विद नॉन सिस्टेमिक सच एज कॉपर कार्बोनेट एंड सिस्टेमिक सच एज कार्बोक्सिन, ऑक्सीकार्बोक्सिन एंड पायराकार्बोलेट हैव आल्सो बीन यूज्ड। नीरगार्ड इन 1977। नाउ डिजीज मैनेजमेंट। डिजीज मैनेजमेंट कैसे किया जाए? Generally, strategies to prevent flag smut include use of disease-resistant
cultivars, chemical seed treatments and crop rotation to reduce amount of inoculum present. तो जनरली हम क्या कर सकते हैं, डिजीज रेजिस्टेंट कल्टीवार्स ग्रो करें, केमिकली सीड्स को ट्रीट किया जाए और क्रॉप रोटेशन किया जाए, जिससे इनोकुलम का अमाउंट जो है वो रिड्यूस हो सकता है. सिंस यूरोसिस्टिस एग्रोपायरी स्पोर्स जर्मिनेट इन ड्राई सॉइल्स, मेंटेनिंग वेटर सॉइल्स हेल्प टू डिमिनिश देयर वायबिलिटी. स्पोर जो जर्मिनेट होते हैं वो ड्राई सॉइल्स में होते हैं, तो यदि हम सॉइल का मॉइस्चर बना के रखें तो इनकी वायबिलिटी जो है वो समाप्त हो सकती है. कार्बोक्सिन इज ए कॉमनली यूज्ड फंजीसाइड ऑन सीड्स विच वर्क्स वेल टू प्रिवेंट ऑनसेट ऑफ डिजीज. कार्बोक्सिन का यूज किया जा सकता है. In addition to seed treatment, application of systemic fungicides early in the growing season and at low doses is effective at controlling the disease. Sowing seeds shallowly in soil also help to reduce disease occurrence. यदि शैलो सीड्स सोइंग की जाए तो भी हम डिजीज को रिड्यूस कर सकते हैं. यील्ड लॉस, कितना नुकसान होता है हमारी उपज के अंदर. Losses from flag smut are usually considered on a field-by-field basis. Field planted with susceptible cultivars that happen to become infected will generally be total losses. In the 1960s, new varieties were planted which supported a resurgence of disease. Occasionally, total crop losses still occur, but the typical loss range is 5 to 20%. Losses may be either direct or indirect, as affected plants may be more susceptible to other biotic or abiotic stresses. India reported losses from flag smut in the 1940s through the 1970s, and this averaged about 15,000 tons each year. India and the United States currently have low incidence of this disease due to deployment of resistant cultivars. यहाँ पर ये टॉपिक जो है फ्लैग स्मट ऑफ वीट खत्म होता है, समाप्त होता है. थैंक यू.